Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 11th SPCC chapter number 1 from part 2, meaning and the types of company secretary. So as we all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with a short summarization of the portion that we have seen on the previous video, which means a short revision. So previously we have seen about the ministerial secretary, company secretary, types of company secretary, secretary of embassy and departmental secretary in a very detailed manner. So what is ministerial secretary or who is ministerial secretary? Ministerial secretary means, you know that in Western country people elect president and the president has to take the whole charge of administration of the country. But as a single person cannot do all thing in by own, that's why he elect the departmental ministry, the ministry for each and every department. So the head of particular department that is elected by the president is considered as ministry of that particular department. You know that there is education department, there is resources department. In this manner, each and every department has a HOD, which means the main person in charge. He is considered as the ministerial secretary. So after that we have seen the company secretary. So according to 2013, the new company act, it is mandatory. Mandatory means compulsory to keep a secretary for the public issue company which is having the paid up capital for more than or up to 5 crore rupees. So they have to appoint the company secretary compulsorily. You know that the shareholders are the real owner of the company, but as the numbers of shareholders are more, they cannot handle the company by an unity in a very proper way. That's why the persons, those who have established the company, board of the director, they has to take the certain decision for a company. But there is also a problem that the board of director must not be knowing about the authenticated rules and regulation related to the new amendment and the new things. And even if one of the board director is from out of the country and he is been as a board director, then he cannot be knowing about the rules and regulation in a very proper manner. That's why a company select a proper candidate, competent candidate to handle the day-to-day life activity of the company, and that person who is employed is considered as company secretary. So here the company secretary does not has any authority, but he has to work according to the board of director. What are the authorities that is given by the board of director, that he or she has to follow up and complete in a very proper manner. So if you are seeing according to the general and the administrative level, the secretary can be classified in a company. So company has two types of secretary. First one is general and second is administrative. So what are they and how they perform? Let us see that in a very detailed manner. First one we are going to see its general secretary. If you are seeing, the general secretary's work is to issue the debenture and share which is given as an objective by the board of director. So according to the board of director, she or he has to issue the shares. Rather than that, providing the debentures, dividend to the people, which means the dividend amount to the person, listing of the shares in the market, doing the agreement with the list of the stock exchange and the registrar, and seeing the book account of the registrar, allotting the share, getting the minimum subscription of the share, issuing the share allotment, and if someone is not paying the money, calling that money, then forfeiting of that share. These all, which means the things related to the shareholders and the shares, this whole portion is being done by the general secretary. Rather than that, arranging the general meeting for the shareholders, preparing the agenda, preparing the minutes, these all things are being covered up by the general secretary. Next, it is administrative secretary. If you are seeing, the administrative secretary's work is to see the day-to-day life portion, selecting an employee, appointing an employee, giving a proper reliable information to the board of directors while preparing the policies formulation and creating new programs,
rather than that checking the account information, seeing the individual department in a very proper manner, seeing the expenses and the accounts of the company. These all things are being done up by the administrative secretary. We can say that the administrative secretary is always dealing between or creating a link between the company and the board of director, while the general secretary is creating a link between the shareholders and the board of directors. So in this manner, these both secretaries are very important in a company. After that, we have seen the secretary of embassy. Who is the secretary of embassy, or who is the secretary embassy? We know that particularly we select an ambassador for representing our country. In the same manner, our country elects a candidate as an ambassador to represent our country in the other country and convince the other country people for our ideology, is considered as secretary of embassy. So he is the person who is indicating our country in the out of the other country. After that, we have seen the departmental secretary. You know that we elect the minister and the legislative minister of the country. So once we are electing, the majority of the portion is seen as the cabinet ministry. So in the cabinet ministry, one of them becomes the prime minister. After that, the prime minister elects the head of particular department, who is considered as ministerial secretary. The ministerial secretary, who is the in charge of the particular department, cannot do all works by his alone. That's why he needs a secretary behind him. He elects a gadget officer, IAS officer, for working behind him. That IAS officer is considered as departmental secretary, whose work is to see the new policies and formulation and the smooth going and lawful act of that particular department. He must be lawful, honest and a loyal person in a very deep manner. If you are seeing, such person is considered as the departmental secretary. So up till this we have seen in a very detailed manner. So now let us move on with the today's portion in a very detailed manner in the further video. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. So today we are going to see from the association union secretary. So what are the types of it, that we are going to see up in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully. Has human civilization advanced, the form, scope and the range of the cultured, economic and society changed. So the economic, social, political and cultural institutions and unions need secretary. The various type of union secretary are as below. So human civilization, जैसे हमारा रहने का जो तौर तरीका जितना एडवांस होता गया, जितना हमारे फॉर्म्स चेंज होते गए, जितना स्कोप यानी जितना और तरक्की हम करते गए, उतना उतना हमारी कल्चर इकोनॉमिक में भी एक वाइड रेंज देखा गया. इवन हमारी सोसाइटी भी चेंज होती गई. जैसे जैसे इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन और यूनियन बनते गए, उतना उसमें सेक्रेटरी की जरूरत बढ़ती गई. सो कितने वेरियस टाइप ऑफ यूनियन सेक्रेटरीज देखे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेयली देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज स्टूडेंट यूनियन secretary. In schools and colleges, make the student understand democratic pattern to utilize students' right to represent their problem, and students' unions are formulated. The students elect their secretary by election. Such elected person is known as popularly as GS General Secretary. So most probably जो to be honest ICSE और CBSE स्कूल में ये होता है, rather than that जो probably स्कूल और कॉलेज में तो ये ज़्यादातर देखा ही जाता है. सो स्कूल और कॉलेज में हमें डेमोक्रेटिक पैटर्न समझ में आए, हमें पता हमें क्या है, फ्रीडम चाहिए. rather than that फ्रीडम कैसी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होगी. जैसे हम बोल सकते हैं टॉयलेट में टैप खराब हो गया है, विंडो ये है, फैन चल नहीं रही हमारी क्लास में, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिससे हमें रोज फेस आउट करना पड़ता है. सो ऐसे डेमोक्रेटिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, हम में से किसी को हमें इलेक्ट करना है जो हमारे वती, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के ऊपर तक हमारी प्रॉब्लम्स को पहुंचाए. तो हमारी यूटिलाइजेशन स्टूडेंट्स राइट्स को ठीक से उनको समझाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आउट करना पड़ता है एंटायर एकेडमिक ईयर में. देखो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, ये सब अलग है, ठीक है, बट
जेन्यून वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि प्रोबेबली टॉयलेट की आपकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कंप्यूटर लैब में आपके लैब्स में ज़्यादा जितना कंप्यूटर्स होना चाहिए उतना है नहीं, तो इस तरीके के कुछ मेजर और जेन्यून प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसे मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसलिए कॉलेज या स्टूडेंट्स स्कूल में जो हाई लेवल ऑफ स्कूल्स या कॉलेज होते हैं वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट एक सेक्रेटरी को इलेक्ट करते हैं, अपने बीच में से ही कोई एक अच्छे इंसान को इलेक्ट किया जाता है, और वो इलेक्टेड पर्सन क्या है, इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसका एक इलेक्शन होता है, स्टूडेंट वोटिंग, यानी आपको 18 साल के बाद कैसे लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेना है इलेक्शन के टाइम में, उसकी कहीं ना कहीं सीख जो है आपके बचपन से यानी स्कूल टाइमिंग से, कॉलेज टाइमिंग से ही आपको सिखाया जाता है। अब ये जो इंसान इलेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग खड़े थे, उसमें से ए जीत गया, ठीक है, अब ए कैसे अच्छी तरीके से आपकी देखभाल करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इससे हमें डेमोक्रेटिक पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो पर्सन इलेक्ट हुआ है इसे जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है। क्यों जनरल सेक्रेटरी? क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का उसका काम होता है। तो कहीं ना कहीं उसे पॉपुलरली जीएस बोला जाता है। इवन जीएस और एलआर होते हैं। जीएस जो है वो जेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एलआर जो है वो लेडीज रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज में तो ये कंपलसरी होता ही होता है। स्कूल्स वगैरह में एज आई सेड बहुत अच्छी वाली जो होती है, इन द सेंस जो इंटरनेशनल लेवल में होती है, वहां पे जिनको डेमोक्रेटिक बचपन से सिखाना होता है वो जगह पे देखा जाता है। रादर देन दैट स्कूल में हमारा मॉनिटर का तो सिचुएशंस होता है, आपको पता है, जो अच्छा पढ़ता लिखता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। फिर हमारा कोई प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली टीचर को बोलने की जगह मॉनिटर को बोलते हैं, उन टीचर को बोलना ना क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक पोर्शन में देखा ही जाता है, तो उसे स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी के अंदर जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है। नेक्स्ट इट इज क्लब सेक्रेटरी। Clubs are established to promote sports and cultural activity. Example, the Sports Club of Gujarat, BCCI, Board of Control for Cricket in India, etc. The secretary is elected or appointed as per constitution of club. The function of such secretary is to manage club according to the need and prevailing law. तो आपको पता है क्लब्स कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किए जाते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो स्पोर्ट क्लब ऑफ गुजरात जो है और बीसीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सो ये सारी चीजें जो है इनमें भी सेक्रेटरी को इलेक्ट किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है पर्टिकुलर उस क्लब को हैंडल करने के लिए। सो ये जो फंक्शन होता है ऐसे सेक्रेटरी का, सिर्फ इस क्लब को मैनेज करे और इनकी क्या नीड है, इस क्लब के अंदर क्या नीड है और प्रिवेलिंग लॉ के हिसाब से उस नीड को कैसे फुलफिल करे, वो इस क्लब सेक्रेटरी का काम माना जाता है। नेक्स्ट इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। In cities like Delhi, Kolkata and Ahmedabad, big education campus is elected. To manage such big educational institute, secretary is appointed. In such place, secretary is work as chief administrative ऑफिसर। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं सिटीज जैसे कि दिल्ली, कोलकाता एंड अहमदाबाद, ये सारी जगह पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े एजुकेशनल कैंपसेस देखे जाते हैं। तो ये जो एजुकेशनल कैंपसेस या इंस्टीट्यूशन है, इधर एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये प्लेस में वो इंसान जो कि मैंने बोला जनरल सेक्रेटरी का काम करे, डे टू डे लाइफ में जो मैनेजमेंट होता है उनकी जगह पे उनके बिहाफ में काम करे, ऐसा इसको एक प्लेस दिया जाता है। ऐसे प्लेस में इवन ये सेक्रेटरी जो काम करते हैं इनका काम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जैसा होता है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना फीस आया, कहाँ क्या अमेंडमेंट करना है, कहाँ क्या करना है, किस तरीके से, ऐसे जो ट्रस्टीज होते हैं स्कूल के वो जैसे काम करते हैं उनके बिहाफ में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम करते हैं। इवन इफ यू आर सीइंग आईसीएसई स्कूल में ये मोस्ट प्रोबेबली होता है। सो इवन आई हैव बीन केम फ्रॉम दैट, सो आई वाज अवेयर कि हमारे भी एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जो ट्रस्टीज नहीं होते थे उस टाइम पे, सारा डिसीजन उन्हीं को ही लेना पड़ता है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरीज भी देखे जाते। आफ्टर दैट लेबर यूनियन सेक्रेटरीज, द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट एरिया formulates labor union to represent their demand problems before authority government. As for example in India, INTUC
Indian National Trade Union Congress and ITUC, International Trade Union Confederations. Unions are active. These unions appoint secretary to represent that demand before respective authority. In 1922, the ex-president of India, Shri V.V. Giri, established अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ. ठीक है. सो वर्कर्स, आपको पता है वर्कर्स हर जगह डिफरेंट एरिया में काम करते हैं और डिफरेंट काम करना पड़ता है, इसीलिए उनका एक लेबर यूनियन होना इम्पॉर्टेंट माना जाता है. जैसे ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, उनका एक यूनियन है, टैक्सी ड्राइवर का एक यूनियन है. क्यों? इनकी डिमांड क्या है. ठीक है. जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, अगर एक ड्राइवर 17 में ले जाता है और दूसरा 60 में ही ले जाता है, तो एक की तो लॉस, जेन्यूनली वो बढ़ा रहा है तो वो लॉस हो जाता है. इस तरीके से उनकी डिमांड, उनकी प्रॉब्लम, ये सारी अथॉरिटी और गवर्नमेंट के सामने रख पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ये दोनों में एक यूनियन एक्टिव किया गया और इस यूनियन की एज ए सेक्रेटरी जो है एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया ताकि इनकी डिमांड और इनकी सारी चीजें रिस्पेक्टिव अथॉरिटी तक पहुंचा जाए. इवन इन 1992 एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो वीवी गिरी थे, उन्होंने अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, यानी जो रेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका एक यूनियन फॉर्म अप किया था. तो इस तरीके से पर्टिकुलर लेबर का भी यूनियन सेक्रेटरी देखा जाता है. तो वो भी एज एन पूरे लेबर के वती एक इंसान इलेक्ट किया जाता है और वो पूरे एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इट इज ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी. The trade association, the producers association, the service sector association, etc. establish their union to solve their problem which are raised in business. Example, Indian Chamber of Commerce, FICCI, etc. are such association. When such association is formulated, that secretary is appointed. The secretary has to manage such association as per constitution. So trade association की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड एसोसिएशन में प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जो लोग प्रोड्यूसिंग करते हैं वो, सर्विस सेक्टर एसोसिएशन, इस तरीके का एक पर्टिकुलर यूनियन देखा जाता है जहां पे बिजनेस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स देखा जाता है वो सॉल्व किया जाता है. जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बात कर सकते हो. FICC एक्सेट्रा, ये सारे एसोसिएशन ऐसे एसोसिएशन है जहां पे सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं और इस सेक्रेटरी का काम सिर्फ इतना है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है उसके हिसाब से ट्रेडिंग हो के नहीं, इसके रिलेटेड डिसीजंस लेना, यही इनका काम माना जाता है. नेक्स्ट इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी. सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. To promote economic empowerment of the people, to enhance social and cultural environment of the society, cooperative society, credit cooperative societies are established. Example, housing cooperative society. In school, college and in other institution also employees establish staff credit cooperative society to obtain loan in easy terms and condition. In such cooperative society, secretary is appointed or elected. The secretary has to manage cooperative society as per its constitution, rules and regulations of society. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को यानी पैसे की एम्पावरमेंट को लोगों तक प्रमोट करने के लिए, हमें सोशली एनहांस यानी बढ़ाने के लिए, कल्चरल एनवायरनमेंट को और अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेल्प लेना पड़ता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोगों की वेलफेयर करने के लिए, रेदर देन दैट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं. जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अमुक रीजनेबल रेट में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा जाता है. स्कूल, कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो लोग स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ा करते हैं, जिससे लोन या कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन उन लोगों के लिए इजी किया जा सकता है. तो ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वहां पे भी एक सेक्रेटरी की हमेशा जरूरत होती है और वहां पे भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है. इस सेक्रेटरी का काम इतना होता है कि वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सोसाइटी चलते हैं उस हिसाब से उस सोसाइटी को चले और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको चलाए, वो उसका मेजर काम माना जाता है. सो इस तरीके से एसोसिएशन और यूनियन
सेक्रेटरी का हमने 6 पॉइंट्स देखा, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ हियर द चैप्टर इज बीन completed, so you know that what you have to do. You have to complete the exercise. Don't worry about the exercise. As usual, I will provide you the PDF of the portion, but try to buy the books in a very short term. Now let us move on with the discussion of the revision that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the association or the union secretary in a very detailed manner, in which we have covered 6 points in a very brief and detailed manner. And as you all know, today we have completed our chapter 1 from part 2. So now let us have a short revision of the topic that we have seen. So first, association or union of secretary की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होता गया है, जैसे जैसे हमारा सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल वे ऑफ बीइंग डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमारे यूनियंस पर्टिकुलर टॉपिक्स में देखे गए. जैसे एजुकेशन के लिए एक यूनियन, लेबर के लिए एक यूनियन, ट्रेडिंग के लिए एक यूनियन, एक ग्रुप देखा गया जो पर्टिकुलरली उस स्किल के साथ जुड़े हुए थे. तो उस स्किल की डेवलपमेंट के लिए और उन स्किल में जो प्रॉब्लम्स या बैरियर्स आते हैं उसे कई हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए एक सेक्रेटरी या एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ी, जिसमें हमें ये यूनियन सेक्रेटरी का टॉपिक आज देखना पड़ रहा है. इस तरीके का एक डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के कल्चर के अंदर देखा गया. सो और डिटेल में जानने के लिए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट जो है सेक्रेटरी, स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी. स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी की अगर बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज में यू नो दैट बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिस प्रॉब्लम्स को बताने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक ट्रेड यूनियन, जैसे एक लेबर यूनियन होता है उसी तरीके से एक यूनियन की जरूरत थी. तो उस यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए अमॉन्ग द स्टूडेंट एक डेमोक्रेटिक पैटर्न उनको समझाने के लिए अमॉन्ग द स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इलेक्शन करवा के इलेक्ट किया जाता है, जिसे हम जनरल सेक्रेटरी भी तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस जनरल सेक्रेटरी का काम यह है कि स्कूल या कॉलेजेस में, यानी वो पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज जहां वो इलेक्ट हुए वहां पे जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम ये पर्टिकुलर सेक्रेटरी का देखा जाता है. सो इस तरीके से स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी देखा गया है. नेक्स्ट, इफ यू आर सीइंग आफ्टर स्टूडेंट, you can say that next it is the labor union secretary. So labor union secretary की अगर हम बात करते हैं, you know that कि लेबर्स को अपनी मांगे, डिमांड गवर्नमेंट या पर्टिकुलर मैनेजमेंट तक, अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर जो है सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है. सो लेबर यूनियन सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं तो लेबर यूनियन सेक्रेटरी के अंदर जो लेबर्स होते हैं उन्हीं के बीच अमॉन्ग ऑफ देम एक पर्टिकुलर लेबर को इलेक्शन के थ्रू, अगेन इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनकी प्रॉब्लम और उनकी जो नीड्स है, वांट है, ये मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए भेजा जाता है. सो इस तरीके से लेबर यूनियन मैनेजमेंट भी देखा गया है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, लेबर्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू से दैट ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी. ट्रेड यूनियन कॉमर्स का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, यू नो दैट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी तरीके से FI, FCCI, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन या हायर अथॉरिटी है जो कॉमर्स के रिलेटेड डिसीजंस को फेम अप करता है. इवन यहाँ पे भी एक कॉमर्स के रिलेटेड सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, जो लोगों के बीच में, वी कैन से दैट कॉमर्स और ट्रेडिंग करने वाले लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम देखा जाता है, उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन लाना हो या उनकी जो बैरियर्स है उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं एज ए सेक्रेटरी इलेक्ट होके उस चीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव होके काम करता है. सो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला. सो रेदर देन दैट हमने 3 टॉपिक बहुत ही डिटेल में देखा. आफ्टर दैट वी हैव सीन स्टिल 4 टॉपिक्स हमने डिटेल में देखा. हमने देखा स्टूडेंट्स का, देखा ट्रेड का, देखा कॉमर्स का, देखा नेक्स्ट इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करते तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमने ये देखा लोगों की वेलफेयर के हिसाब से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा जाता है एंड स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा जाता है. ये 2 टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा जाता है. बट सोशली, इकोनॉमिकली हर एक चीज को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों
को एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है। यू नो दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसा सोसाइटी जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जितने भी लोग स्कूल कॉलेज या जहाँ पे भी एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं वो लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जहां से लोन वगैरह लेने के लिए इजीली उनको एप्लीकेबल हो सकता है और इजीली वो चीज को वो जो है टर्म्स एंड कंडीशन में फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे एक सेक्रेटरी की उनको जरूरत उस सोसाइटी के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट नॉर्मल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे वर्क करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजों को डिटेल में बताने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सेक्रेटरी की जरूरत रहती है। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट क्लब सेक्रेटरी। क्लब सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट आजकल कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ये जितना बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हमें वहां पे एज ए सेक्रेटरी एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पर्टिकुलर आप ले लो इंडियन स्पोर्ट्स क्लब है, फिर बीसीसीआई है जो इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड देखा जाता है। तो ये सारे जो एकेडमी है, जो स्पोर्ट्स क्लब है, इनमें प्रिवेलिंग रूल्स के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, कैसे लोगों को स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ाना चाहिए, इस सारी चीज के लिए एक सेक्रेटरी की होनी जरूरी है जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज करे और कहीं ना कहीं उसके साथ उस चीज को अच्छे से आगे ले पाए। इसलिए तो एज ए कंपटीट वहां पे भी एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती। तो इस तरीके से एसोसिएशन और यूनियन ऑफ सेक्रेटरी के अंदर हमने सेक्रेटरी के अंदर 6 टॉपिक्स को डिटेल में देखा। सो हियर हमारा चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड हब। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वाज एन इंटरेस्टिंग video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat. Don't forget to complete the homework. Bye.